को मिनिमाइज करते हुए चले जाएंगे। आवाज आ रहा है तो मिनिमाइज कर आ रहा ना। एक मिनट अब अपना कोई खोल सकते हैं हम जा। और वो कहाँ गया वो वाला मेरा? एक सेकंड रुक जाओ। ये तो नहीं है, नेक्स्ट वाला इसका है, अगला चैप्टर है। वो तो उस क्लास में रखा है। नहीं इधर ही है। इसमें हाँ मिल जाएगा। एक ही सेकंड रुक जाओ, चले जाओ। अरे उनको इतने दिन से कर रहे हैं फिर भी उनको नहीं आ रहा है क्या? आ गया तो अभी मैं यहीं से डिलीट कराऊं। अब खड़ा होकर पेन से भी यूज कर सकते हैं कुछ। वो कहाँ गया पेन? ये है क्या? हाँ ये पेन लेके और कुछ लिखना तो सर इस पे ये ले लेंगे। हाँ इसको फिर मैं और लिख सकते हैं आप जो भी करना है पोटेंशियल पॉजिटिव है। कलर दूसरा ही ले लीजिए, कलर कोई भी कलर पे थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. Good morning, Okay. sir. Morning. So today Good morning, sir. very good morning. So today we are trying our class in this one Microsoft Team, and our today's chapter is potential. So last class I told you that I will share some of the questions with you. I forgot yesterday. Today I will give you, no problem. So in this chapter, in potential and capacitance, we will start this one potential. So actually, electric field around a charge we will describe by two ways: by electric field and by electrostatic potential or electric potential. So as you know that for the flow of water, some level difference is required. In a plain place, water can't flow. So similarly, for the flow of current, this potential difference is required. If there is no potential difference, there is no question of flow of current. Then questions comes, what is potential and what is potential difference? Then potential at a point in an electric field basically is the amount of work done that is required to move a unit positive charge from infinity to that point. So if you go to this point, I mean, as we are showing you on the board, the question, I mean, the point of this electrostatic field or potential, as I told you, we discussed in class 10 also, the matter of potential, amount of work done that is required to move a unit positive charge from infinity to that point. So you want to bring a 1 coulomb charge from infinite distance to a particular point inside the electric field, and suppose you have to do 10 joule of work, then that 10 joule of work per unit coulomb means 10 joule per coulomb is the potential at that point, and potential basically gets the unit of volt. So when we are talking about this potential at a point, we denote it by V, the capital letter V, and we write the formula V equal to W by Q, work done per unit charge. Now the question is, when you were writing this potential and defining it by volt, then how one can define 1 volt? See, electric potential at a point will be 1 volt if 1 joule of work is to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from infinity to that point is known as the potential of 1 volt. तो आप 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया वो अगर 1 जूल है तो आपको बोला जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल है 1 वोल्ट.
Now that's about potential, and now we are getting the another topic that is called potential difference. See, basically potential difference is the amount of work done in moving a charge from one point to another point inside the electric field. ये दोनों पॉइंट फाइनाइट होना चाहिए. वन पॉइंट से और एक पॉइंट में आप लेकर के आ रहे हो कोई चार्ज को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मूव कर रहे हो, तो दोनों पॉइंट का बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. तो सपोज आपने कोई भी चार्ज को कोई एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके लेके आ रहे हो, तो आप जब ए और बी अगर दो पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है और अगर आप उस चार्ज को ए से बी तक मूव कर रहे हो, तो वर्क डन जो होगा वो डब्ल्यू ए बी होगा. और ए बी दोनों हमने बोला कि आप उस पॉइंट चार्ज को ए से बी में मूव करके लेके जा रहे हो तो डेफिनेटली फोर्स रिपल्सिव होगा. पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालेंगे वो वी बी माइनस वी ए होगा. पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए. आपने पॉइंट को कहाँ ले गया फाइनली, आप बी में ले गए, तो पोटेंशियल ऑफ बी पहले लिख देंगे हम लोग वी बी माइनस वी ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन डब्ल्यू बाई क्यू. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी आपका वोल्ट होता है और इसको हम लोग लिखते हैं जूल पर कूलम में. याद रखिएगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है. सो कैन एनीवन टेल मी दैट हाउ यू कैन डिफाइन 1 volt potential difference? Anybody? Yes. चलिए मैं हेल्प करता हूं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to other point. आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है, वो क्या है कि पहले के केस में जब आपने पोटेंशियल डिफाइन किया तो आपने बोला कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट. यहाँ पे इंफिनिटी छोड़ दीजिए, यहाँ पे दोनों पॉइंट आपका फाइनाइट पॉइंट है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम one point to another point inside the electric field, that is the, in that case the potential difference will become 1 volt. तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं. तो नॉर्मली आपके सामने अगर ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेन पॉइंट्स है, लेट मी शो यू वन मोर. Just a minute. In the same time, one more thing let me tell you, line integral of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जब वर्क कर रहे हो, अगर आप किसी चार्ज को मूव कर रहे हो, तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फील्ड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. मतलब ये भी डिफाइन कर रहा है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को WAB लिख दिया इक्वल टू इंटीग्रल DW एंड दैट इज इक्वल टू A to B E डॉट DL. इलेक्ट्रिक फील्ड और ये लाइन इंटीग्रल DL है माइनस साइन के साथ. सपोज Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज इन प्लेस ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स हो जाएगा F इजिकल टू Q नॉट E, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इक्वल टू F बाई Q नॉट. F हो गया Q नॉट E. Acts on the test charge due to the source charge plus. So it is radially outward and tends to accelerate the test charge. एक बात और आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, वो क्या है कि जो आपने टेस्ट चार्ज लिया है और जो सोर्स चार्ज होता है, हमने पहले भी एक बात को आपको बताया था शायद कि टेस्ट चार्ज जो है मतलब जिससे हम लोग उस फील्ड में वहाँ का स्ट्रेंथ कितना है वो जानने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन किए थे. टेस्ट चार्ज का वैल्यू जो है वो आपका सोर्स चार्ज जिसने फील्ड क्रिएट किया उससे बहुत स्मॉल होना पड़ेगा. क्यों? नहीं तो वो पूरे हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारा मेन सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसको पूरा वो डिस्टर्ब कर देगा. तो उसको डिस्टर्ब ना करे इसके लिए
हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम कम से कम अपना जो एक इसमें प्रिवेंशन लेते हैं कि टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल कंसिडर करते हैं। तो अभी जो आप देख रहे थे, अभी देखिए आपको सामने आ गया डब्ल्यू ए बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट इक्वल टू ए टू बी। मैंने चार्ज को ए से बी तक मूव किया था, सो ई डॉट डी एल निगेटिव इंटीग्रल। और यहाँ हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें इस तरह के दिखाई देगा। ये हम डिराइव करेंगे बाद में, नॉट टू वरी दिस वन। नाउ सी वन थिंग मोर, line integral over a closed path is 0 in an electric field। ये एक कंडीशन है जो कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए सेटिस्फाइड करना पड़ता है। अब आपका पोटेंशियल वाला जो बात मैं बता रहा, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज का फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो चीज को जो सिग्निफाई करेगा, जो कंफर्म करेगा, वो होता है पोटेंशियल। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path। तो इसीलिए हम बोले थे डब्ल्यू ए बी इक्वल टू ए डॉट बी ई डॉट डी एल, निगेटिव रहेगा माइनस ऑफ निगेटिव इंटीग्रल, और इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1 बाई क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है, आपको भी दिख रहा है यहाँ पर इस लाइन में। आप देखिए डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस ई ए टू बी इंटीग्रल ई डॉट डी एल। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट कर रहे हो ई का 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, तो हमने बोला था ए से बी में जा रहे हो, इसीलिए ये 1 बाई आर बी आ गया माइनस 1 बाई आर ए आ गया। क्यू नॉट क्यों आया, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। तो इस तरह से जब भी आप इस काम को कर रहे हो, आप यहाँ से अलग अलग फॉर्मूले पुट कर सकते हो, बना सकते हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने इंफिनिटी से लेकर के यहां तक लाया, तो हमारा आर ए हो गया इंफिनिटी, आर बी हो गया आर। तो वी कैन गेट डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसलिए भी इक्वल टू आ गया डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक इसका तो हमने आपको यूनिट बोल दिया, वोल्ट या तो जूल पर कूलम बोल सकते हो। और जूल यानी कि वर्क होता है, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो आप इसका यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हो। यूनिट्स एक क्वांटिटी का जितना होगा उतना यूनिट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल 1 मार्क क्वेश्चंस में वो लोग यूनिट अलग अलग देके आपको पूछते हैं कि ये यूनिट किसका है बताइए। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो बात मैं आपको बता रहा था। देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्होंने, वही डब्ल्यू ए बी है, ए से बी तक गया, निगेटिव इंटीग्रल ई डॉट डी एल है। ये पूरा आपको करते करते प्रैक्टिस में आ जाएगा। फिर ये वैल्यू आपका पुट कर दिया आपने, तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट तो आपको मिल जाएगा वही चीज। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर आर बी या आर ए कोई इंफिनिटी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों डेफिनिट पॉइंट्स है। तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट जो है वो हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर ए। ये जो क्वांटिटी है ये देख लीजिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी, इसको हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट बी बोलते हैं, वी बी। और इस क्वांटिटी को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी ए। तो वी बी माइनस वी ए अगर आप लिखते हो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल भी लिखते हैं इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस
थोड़ा पहले मैंने आपको बताया था, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होगा? 0 होगा। ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट डाउन करवाया है ताकि आपको ये सब चीजें याद रहे। पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q greater than 0 is positive and that near an isolated negative charge is negative. इसका रीजन क्या है? क्योंकि पोटेंशियल का एक ही फॉर्मूला है जो अभी हमने देखा था, KQ/R। तो यहां पर KQ/R अगर आप लिखते हो पोटेंशियल का वैल्यू, आप यहां पर देख लो, ये लिख रहे हो ना VB, इसके लिए क्या लिखा आपने? 1/4 pi epsilon naught Q/R है। तो KQ/R, KQ/R is the normal formula for potential और KQ/R² was the formula for electric field। तो KQ/R में Q अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, Q अगर निगेटिव है पोटेंशियल निगेटिव है। देयर इज नो डाउट, Q के ऊपर डिपेंड करेगा आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आगे चलते हैं, हमें निकलना पड़ेगा, एक डिराइवेशन आता है एग्जाम में, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ये 1 मार्क के लिए आएगा, सॉरी 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, इसको डिराइव करना पड़ता है हमें एग्जामिनेशन में। तो बेसिकली जब आप पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज अगर आप निकालते हो, तो थोड़ा पहले मैंने आपको बोला था एक बात की, हम लोग अपना जो टेस्ट चार्ज है उसको Q0 पकड़ लेते हैं। अगर हम लोग अपना टेस्ट चार्ज को Q0 पकड़ते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लेट प्लस Q0 बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P। ये डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो प्लस Q है, लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और टेस्ट चार्ज वो Q0 है, यहाँ पर है, पॉइंट P में है। और ये Q0 का डिस्टेंस जो है वो सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है? टोटल इसका डिस्टेंस कितना है बताओ मेरे को? x। वेरी गुड। सो हम ऐसा लिख देंगे, लेट P बी ए पॉइंट व्हेयर टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड at a distance x from the source charge where you want to find out the potential. Now force F equal to how much? F will be equal to Q0 E. Force का formula है Q0 E, and that definitely ये आपका सोर्स चार्ज प्लस Q है और टेस्ट चार्ज प्लस Q0 है, दोनों प्लस प्लस है, इसीलिए फोर्स तो रिपल्सिव होगा, सो फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। तो Q0 E वेक्टर जो है वो राइट के वो डायरेक्शन दिखाया गया है। लेकिन ये फोर्स ट्राई करेगा कि उसको राइट के ओर मतलब मूव करे, एक्सेलरेट करे। तो टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, equal and opposite force of minus Q0 E we have to apply on the test charge. So क्या करना चाहिए हमें? Work done to move the Q0 from P to Q। अब इस Q0 को हम मूव करने वाले हैं, इस Q0 को हम मूव करने वाले हैं, कहां से कहां तक? फ्रॉम पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक मूव करेंगे और देखेंगे ये स्मॉल डिस्टेंस dx को ट्रेवल करने में ये कितना वर्क कर रहा है। तो वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम P टू Q थ्रू dx अगेंस्ट Q0 E। Q0 E तो आउटवर्ड है, उसके अगेंस्ट में हम इसको मूव कर रहे हैं। तो वर्क डन जो होगा देखिए वो कितना दिखा रहा है, dw स्मॉल dw वर्क इज इक्वल टू फोर्स कैपिटल F वेक्टर डॉट dx। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वैल्यू पुट कर दीजिए Q0 E डॉट dx। अब देखिए here you will find dw equal to, simply it is E dot dx, vector E dot vector dx, but E and dx both are in opposite direction here. Electric field in the outward direction, your displacement is in the inward direction. That is why angle between E and dx is 180 degree. So this becomes Q0 E dx cos 180। अब cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो आपका वैल्यू हो गया माइनस Q0 E dx। अब dw जो है
फिर से लेफ्ट में आइए, dw इक्वल टू, अब क्या करना है, हमें E का वैल्यू पुट करना है। E का वैल्यू आपको मालूम है k/r² है, तो यहाँ पे E का वैल्यू पुट कर दिया हमने 1/4πε0 q/x²। बाकी q0 इंटू dx तो यहां पर था, यहां से हमने q0 इंटू dx को ले लिया, माइनस साइन अभी भी यहां पर है, और यहां लिख दिया हमने सिंस E इक्वल टू इतना। तो टोटल वर्क डन कितना होगा अगर हम इस चार्ज को A टू B में मूव करना चाहते हैं? वी वांट टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी डिस्टेंस टू डिस्टेंस r। r कहां पे है? r पॉइंट B में है। इस बार हम इस चार्ज को एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर के यहां आना चाहते हैं, इस पॉइंट B में लाना चाहते हैं। तो टोटल वर्क डन जो है वो कितना होगा? अभी आप देखिए, टोटल वर्क डन दिखा रहे हैं आपको, WAB लिख दिया हमने, टोटल वर्क डन इक्वल टू, अब टोटल वर्क करेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ लिमिट, और लिमिट कहां से कहां तक है? इन्फिनिटी से लेकर के r तक है। माइनस साइन तो ऑलरेडी ऊपर में था, तो हमने माइनस साइन यहां पे लिख दिया, इन्फिनिटी से r, वैल्यू वही रहेगा q/4πε0 dx/x²। तो माइनस q/4πε0 इतना वाला टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया हमने, और बच गया इन्फिनिटी टू r 1/x² dx। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला x² बाई मिस्टेक आ गया है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये जो x² है डिनोमिनेटर में, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं आना चाहिए, इसको काट देना है आप लोग। यहाँ पे ए एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि अंदर भी हमने लिखा है ना, बाहर भी हो गया, तो ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक आ गया, इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आप देखो, आपका WAB का वैल्यू इतना आया, तो WAB का वैल्यू जब इतना आ गया, WAB बाई Q0 निकालिए, तो देखिए ये कितना आएगा आपको, q/4πε0 r आ गया। ये कैसे आया? अगर आप ये पूछते हो हमको, तो ये जो 1/x² dx का अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1/x² dx आपको क्लास 11 में हमने सिखाया था इंटीग्रेशन करना। 1/x² dx का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये बन जाएगा x⁻² dx, और x⁻² dx का करोगे तो कितना आएगा, x⁻m dx फॉर्मूला आएगा ना वो, तो x⁻² + 1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा -2 + 1, यानी कि एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, और ब्रैकेट में 1/x आएगा। तो 1/x का वैल्यू आप लिमिट पुट कर देना यहाँ पर, r ओनली, 1/∞ 0 हो जाएगा। सो द वैल्यू यू विल गेट v इक्वल टू, क्योंकि इसका वैल्यू v है, तो v इक्वल टू q/4πε0 r। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आपको होता है इन्फिनिटी से r का इंटीग्रेशन करने में 1/x² dx, तो मुझे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप में आपको बता देंगे अगर कोई डाउट हो रहा है तो। अदरवाइज मुझे उम्मीद है आराम से कर लोगे आप, क्योंकि ये तो हमने क्लास 11 में कराया था इसको क्लियरली आपको। ओके, अब एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज लेते हैं, उनका पोटेंशियल निकालते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, ये Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से बहुत सारे चार्जेस है, और उनका पोजीशन वेक्टर जो है वो R1, R2, R3, R4 इस तरह का है। तो टोटल पोटेंशियल अगर आप निकलना चाहते हैं एक पॉइंट में, पॉइंट P में, तो इट विल बी VP विल बी इक्वल टू आवा, एक सेकंड ना, जस्ट ए मिनट। একটা মিনিট লাগবে তো, একটা মিনিট তো আছে, ও একটা মিনিট আগে সমস্যা নেই, নইলে একটা মিনিট দাদুরে কোন রে ভাই, রাখা তো আমার স্টোরের মধ্যে, ওই যে ইয়ের স্টোর, কি নাম তার, পৃথিবীর স্টোর, দাদুরে নিয়ে যাও।
बोले आप चलिए थोड़ा अभी लेके एक बेल्ट लेना है सर, बोला उधर रखा हुआ है सर, थोड़ा खास ना पहले बढ़ जाएगी। तो अभी टोटल पोटेंशियल जो हमने निकाला है वो हो गया आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 कर दिया अप टू Vn। सो V इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 to n QI by RI आ गया, क्योंकि फॉर एनी वन सिंगल चार्ज पोटेंशियल इज V इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q by R होता है। सो हियर यू आर राइटिंग 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, we are using for a number of charges, so V1 V2 V3 V4 all we have to add, so for that reason we are using summation symbol I equal to 1 to n Qi by Ri. So we are getting here V equal to 1/4 pi epsilon naught I equal to 1 to n Qi by. Now this Ri which we used here in terms of position vector, if you write, it is R vector minus sorry extremely sorry. So R vector minus Ri vector, इसका मोड लेने से वो Ri होता है। तो नॉर्मली potential at a point due to a charge is not affected by the presence of other charges. Potential V is inversely proportional to 1 by R, whereas Coulomb force F proportional to 1 by R square. Potential is a scalar quantity, whereas force is a vector quantity. ये मतलब potential को कुछ compare किया गया with some other quantities or with other factors. Though V is called potential at a point, it is actually equal to the potential difference between the points R and infinity. So next is our work to find potential due to a dipole. Now before I go more, let me show you in the textbook example number 2.1. All of you see. What is the question? Any one of you will read please the question, example number 2.1, page number 55. Yes. Fajul? Yes, sir. पढ़िए एग्जांपल 2.1 क्या है? Calculate the potential at a point P due to a charge of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away. अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आता है सीबीएसई में। क्वेश्चन में कुछ दिया भी नहीं है, देखो सिर्फ डिस्टेंस दिया है, चार्ज क्यू दिया है, पोटेंशियल निकालने बोला। पोटेंशियल का फॉर्मूला है B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सिंपली वैल्यू पुट करना है, R का वैल्यू सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बाई R रखना है, वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिल गया। इसका नंबर बी में पूछा गया, hence obtain the work done in bringing a charge of this much from infinity to the point P. So what is the work done? Work done equal to Q into V. आपको V अभी भी मिल गया, Q का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, Q into V करिए, आंसर आ जाएगा। Does the answer depends on the path along which the charge is brought? No. Work done will be path independent. The force is conservative here. So आपको जो ग्राफ दिया गया है फिगर नंबर 2.4 सेम पेज में है, इस ग्राफ को बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना है। V versus R and E versus R, both the graphs are here. Don't put all these scales, points not required, 0.5, 1, 1.5 एग्जाम में नहीं करना है। आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इज फॉर पोटेंशियल एंड ब्लैक लाइन इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा 1/r² के साथ वेरी करता है, सो ग्राफ थोड़ा सा टिफेस्ट होकर के नीचे को आ गया, और भी 1/r के साथ है, सो एक्सपोनेंशियल स्टाइल में वो ग्राफ आया। दोनों ग्राफ एग्जाम में करिएगा, एग्जाम में वो लोग 2000% पूछते हैं ये वाला ग्राफ। तो आगे चलते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए
डायपोल के ओर। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल जैसे आप जाओगे ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, फिर से दोनों मिलेंगे। पहले हम लोग एक्सियल लाइन देखते हैं। देखिए आपके सामने ये डायपोल है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और हम लोग एक पॉइंट P लिए हैं, इस पॉइंट में निकलना चाहते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। सी पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एंड फील्ड ड्यू टू डायपोल दोनों में से एक एग्जाम में पक्का आता है। तो इस डेरिवेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, मतलब इस डेरिवेशन को करना ही एग्जाम में आपको। अब ये जो कैपिटल B वेक्टर है ये क्या है, कौन बताएगा? ये P वेक्टर क्या है बोलो? व्हाट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। क्या हो गया, लाइन चला गया 11:40 में। एनीवे हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल जो है इसको अगले क्लास में करेंगे। अभी हमारा थोड़ा दिस वन लगता है जनरेटर ऑफ हुआ है, पावर गन। लेट अस वेट फॉर अ सेकंड ओनली, इफ इट कम्स इट्स ओके, अदरवाइज वी विल सी। We will discuss the potential due to dipole in our next class. So इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल रहेगा, आपको हम बताएंगे अगले क्लास में, और उम्मीद करेंगे कि आप अपना क्लास जो है वो आपको आज MST में अच्छा ही हुआ होगा क्लास। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल और एग्जांपल 2.2 2.3 अगले क्लास में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगले क्लास को बिल्कुल ही कोई मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम कुछ जरूरी चीज डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम रिलेटेड बहुत सारा चीजें आपको मिल जाएगा। आज हम थोड़े बहुत चीजें ये करना चाहेंगे, क्या बोलते हैं इसको, आपको व्हाट्सएप में भेजेंगे। आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिएगा ताकि आपका जो काम है उसको आराम से आप कर पाओ। कल वाला भी हम आज आपको भेज देंगे, आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। कल जो मैंने गॉस थ्योरम में डिस्कस किया था आपका एप्लीकेशंस फॉर 2 पैरेलल सीट्स, थोड़ा आइए थोड़ा सा उसको आप लोग एक बार करना है। 2 पैरेलल प्लेट्स में बीच में रीजन 1 2 3 3 जगह है, तो 3 जगह में कितना कितना फील्ड है वो निकालना है आप लोग। मैं अभी आपको पोस्ट कर देता हूँ उसको, आप लोग एक बार करिएगा। अगर कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू। ओ प्रकाश जी, प्रकाश सर, तो ऑटोमेटिक चला गया। तो अभी क्या करें इसको, कैसे क्या करें? मोबाइल से ऑन अगर रहता तो ऑफ हो जाता। मोबाइल से MST ऑन कीजिए। अच्छा, एक ऑप्शन बताते हैं। हाँ बताइए। आप MST सेंट्रल वाला 301 डॉट कीजिए, इसमें पूरा काट दीजिए। मैं काट दूँ ना, पूरा काट दीजिए 301 डॉट 301 डॉट निरंगोला अब एक ब्लूटूथ खराब हुआ तो बाकी को तो बचाना है, लोगों को बताना है कि आप लोग चार्ज नहीं लगा रहे हो, सिर्फ क्लास ले रहे हो। कोई बात तो कैसे होगा? पासवर्ड दे दो। जैसे पासवर्ड
आपके पास जरूर बता टीचर @302 कैपिटल टी बस टीचर का टी कैपिटल क्लिक किए @302 इसमें भी टीम्स में जाना है और क्लास ज्वाइन करना है नेक्स्ट में। अब इसमें टीम्स में जाइएगा टीम्स में क्लास चलाना हाँ क्लिक कीजिए ये वीडियो वाला आइकन पर क्लिक करें ज्वाइन कॉन्फिडेंशियल ज्वाइन बच्चों को बाय बोल देंगे। ये बता रहे कि आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं इससे आपका देखिए अभी कितना बच्चे जुड़े हुए हैं आप इससे यहाँ से भी आप क्लास कंडक्ट कर सकते हैं ठीक है सर अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो स्क्रीन पे यही था क्या यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं स्क्रीन पे तो वो चल रहा था पावर पॉइंट प्रेजेंटिंग हाँ हाँ ये वाइट बोर्ड है शेयर फोटो शेयर वीडियो शेयर पावर पॉइंट शेयर स्क्रीन तो ये तो स्क्रीन है यहाँ से स्क्रीन शेयर हो रहा था उस समय सर ना हाँ उसमें से बच्चे देख रहे थे ना पावर पॉइंट चल रहा था आप लोग लीव कर जाइए